Thank you, Damini. Welcome, sir. Okay, so let's begin the round with a little more introduction. So I think we have covered till Shashank. I see a new name, Shobha. Shobha was not covered in the last session. So Yeah, Shobha, hi Jitendra. is this your first class? Yeah, this is my first class. Okay. So Shobha, so how we start a class? So we start, introducing new people, and then a little bit about your experience and your hobbies, and currently what you are doing how you are utilizing this quarantine time means you are learning something new or following some hobbies. Okay, so I have overall 10 years of experience and it's completely like in Oracle applications. So from last 10 years, I'm working as an Oracle application technical consultant. uh, I'm looking for new options, so I'm exploring. And by chance, I got to know that there is a session, there is a a training which is going on currently. So I joined as a demo session for today, and I hope I'll be continuing with the I'll continue with this data analyst path. Mhm. And as for the hobbies, I like watching movies and reading books Mhm. mostly, and talking to friends. So Okay, all right, thank you, Shubha. Yeah, so you need to turn on your video so that we should at least know when we meet. sorry, come again. So you need to turn on your video so that everyone can see that okay, this is Shubha when you meet them after quarantine. Okay, sure. I think you can see me. I'm in a bad condition. Okay, so not an issue. Okay, so moving on to the next person. So we introduced three people. So Shobha, Shashank, Rohit Mahathur. I think we haven't seen you. Rohit, Hello, sir. hello Hello. Rohit. Yeah, Rohit. Yes, sir. Good afternoon, sir, and hi, everyone. Uh, my name is Rohit Mathur, and I am from currently working here in a hospital as the manager, and I'm taking care of the complete task of the hospital. And my in this time period, so between that time, I'm taking these classes. I want I can have more skills to gain more experience in future. And in my time pass and the entertainment time, I'm spending a lot of time with my family while cooking, watching TV, and playing carom, table tennis with them. Mhm. So that is it about me, and I hope to see you all after this. Yeah, I wish the same that we want to meet as soon as possible. Uh, it's too much now. Thank you, Rohit. Now, Rishabh. Thank you, sir. Rishabh, can you hear me? All right, so Rishabh is not responding. So now Rohit Talwar. Yes, sir. Now you call Rajkumar Talwar, but I'm actually Rohit Talwar. Yes, I, so I pronounced your name correctly, right? right, right.
That's my father's name. Rajkumar Parmar is my father's name. Okay, Actually, great. Rohit Parmar is my name. Yeah, actually, I'll tell you something about myself. I'm a chartered accountant also, just like Hemant. But I didn't say it to anyone. Like I wanted to keep hidden. I've got that 28 years experience, working experience, and I qualified in 1989. Most of the time when people were born or something, all children were supposed to be born by that time. I'm 55 years old. I'm the eldest person in class, I think. So, I'm a chartered accountant, and I wanted to go for data analytics also. I did a course in Manipal Academy of Data Sciences earlier. I mean, that was not a PG, it was not like a this kind of job course, but it was a course for students, for like boys of 25, 26, like that. And I did that course. It was very difficult for me to handle the course that time. And but I managed to finish the course. It was a course in Bangalore itself, a residential course there. And I finished that course in 2018-19, and I couldn't pass in one of the subjects that's called unstructured data analysis. I couldn't pass in that subject, so I didn't get a certificate. So and I didn't get a job also after that. So I'm basically I'm doing this course again so as to refresh your memory also and probably get a good job also in this data in this line. I've done R, I've done SQL, I know a little bit of big data and basically Hadoop and other things like that, and SQL a little bit, and exploratory data analysis and training and testing data and models and all this. I've done all that, but it's like a long time back, and about 2 years has been passed already. So I wanted to brush up my memory and all. And this course was cheaper. I mean, that time it was the first course that time in our second batch basically that time, and that was basically costing about 7 lakh rupees, and that was for 11 months, and it was a residential course. All the fooding, lodging, transportation, everything was taken care of by the company. And now here I joined here as a course which is online now, and this is much better because like one-to-one like experience with a teacher. So that thing, and also my interests are music, karate, and I like listening to reading books also, and I like to listen to movies, and I like making friends. That's all. But you won't believe I'm 55 years old. If you look at me, look at me. 55. You cannot guess I'm 55 years old. Look at this now. Can you see me? Yeah, it look like 55 years old, not at all. So I look 35 or something like that. But this is like my age is my disqualification only. That's the only disqualification I have. But like but I'm very young at heart. Thank you. Great, thank you. So yes, so there was a saying right now, Rohitji, that is 60 is a new 40, right? So now you can, yeah, that's true. Now I've seen this thing happening around. Right? Achha. Yeah. And one more thing, data is the new oil. So 60 is a new 40. So don't worry, you still have so many years to reach at your 40. Okay. And it is said that data is the new oil. You heard of that? Yes, yes. Like, so earlier there was some foreign economist who said this word, and later on our own Mr. Mukesh Ambani has used this term. Acha, okay. Okay. And I think in the beginning, during those tests, when we were testing our systems, I have told you this thing, right? So why this is being, why we call this data as a new oil? Because the way economy has changed with the exploration of oil, the same thing is happening like now with the economy, with the technology which is driving the economy right now. Exactly. That's right. All right. So now everyone, please open your R Studio. So we will be doing a practice first, then we will go to the theory later on.
And I know when anyone enroll any program, so they only know one thing. Okay, मेरे को R सीखना है, मेरे को Python सीखना है, मेरे को SAS सीखना है, but they doesn't know these are the tools which enable them, right? So to fulfill your excitement, I'm just starting with R today, right? And but the major part of this industry is the science, which is analytics, right? So let me know once you are ready, and let me begin with our first data structure, which is vector. All right. So vector, let me just revise whatever we have studied in the last session. A vector is a sequence of similar data element, right? So when this word comes in the similar data element, means either all element would be numeric, or element would be character, or element would be a different data type like Boolean or complex number. All right. Now, secondly, a vector is an object that contains a set of values called its element, right? So in the example, you can see that 1, 2, 1, 2 are the elements of the vector workshop. The concatenation function's job is to combine multiple values into a single vector. That you already know, that you cannot assign multiple values in a vector. Can you put your yourself on mute, please? Thank you. So C, please unmute yourself when you need to speak, right? All right. So C job is to combine multiple values into single vector. As you know, we cannot assign multiple value without this operator, right? So we have seen in few examples that when we started assigning value, like x is equal to 5, so we were only assigning single values. That is acceptable. Beyond that, you need to use concatenation function small c. All right. So as mentioned earlier, the value of workshop are numeric, so the vectors mode is numeric. Now the most important thing, if one value were alphabetic, character or string, then the mode would be coerced or forced to be character, right? Anyone knows the logic behind it? So I see there were 10 to 12 people who are from software or IT background. See, I think that if one is a number, then all have to be number. Then only it goes a vector. But if one is character, then all have to be character. I think it cannot be. That is not a vector. Then it's something else. It's like a list or something else. No, it's a vector. So it will remain a vector. However, the element type would change to be character in place of number. Oh, acha, okay. All right. So anyone? मेरे को लोगों के नाम बुला करके पूछना पड़ेगा. कुछ तो कोशिश करो. इतने 10-12 लोग हैं इस ग्रुप में. क्वेश्चन क्या देखो? क्वेश्चन बताइए. क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन है मेरा कि अगर एक एलिमेंट कैरेक्टर होता है तो बाकी सारे एलिमेंट को भी कैरेक्टर होना पड़ता है. इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये होता है ये तो पता है, लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक की वेक्टर का होमोजेनियस ओनली, दैट्स व्हाई द वेक्टर होमोजेनियस होगा. पर अरे फिर कैरेक्टर का नंबर क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा, क्योंकि कैरेक्टर नंबर नहीं कन्वर्ट कर सकते. नंबर को कैरेक्टर कर सकते हैं बाय पुटिंग कोट्स, बट यू कांट कन्वर्ट अ कैरेक्टर टू अ नंबर. कंप्यूटर नॉट अंडरस्टैंड द नंबर एज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द कैरेक्टर. So the logic is character class is known as master class, right? तो कैरेक्टर आप किसी भी मास्टर क्लास. अच्छा, ठीक है ना. तो वो किसी भी टाइप के वैल्यूज को ले लेगी. अच्छा, क्योंकि वो इस कैरेक्टर बोलते हो, राइट? कैरेक्टर बोलते हो आप, उसी को कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो बिकॉज दे आल्सो फॉल्स अंडर द मास्टर क्लास. तो एक तरह से वो दादाजी हैं, बाकी सारे उनकी पुश्ते हैं. ठीक है ना. तो
This is the logic. All right, always put character in quotes. Just like any other programming language, we put character into the quotes. R uses NA to represent missing value, right? So unlike in Python, it is represented as NaN. Over here, we use as NA. सर Yep. सर Yeah, एक what's सेकंड up? आप इसमें जाओगे? एक क्वेश्चन था, मेरे को आया नहीं समझ। Mhm. इसमें जो थर्ड बुलेट पॉइंट था आपका, द concatenation function job is to combine Concatenation function. Yes. तो Yes, इसका मतलब ये है, let me open my R Studio. Then all right. So for example, Vatsal, if you are assigning x is equal to 5, it will take it, right? अगर x के अंदर 5 और 6 डालना है एक साथ, हाँ जी, it will show you error. क्योंकि एक उसकी दो वैल्यूज आप नहीं कर सकते डिफाइन। ओके, एक साथ, तो उसके लिए आपको हाँ जी। स्मॉल c यूज करना पड़ेगा असाइन करने के लिए, तो अब आपके x की वैल्यू 5 और 6 स्टोर होगी। अच्छा, तो इफ वी यूज दिस फंक्शन तो दोनों मतलब x की दो वैल्यूज हो सकती हैं इफ वी यूजिंग दिस फंक्शन, दैट्स हाँ। व्हाट दिस। ओके Yes. ओके ओके, कूल, थैंक यू। Okay. No problem. Continuous sequence of number can be generated using the colon operator. So you can use colon to create multiple values like this. Y is equal to T, 1 is to 10, right? Z is equal to 1 colon 10. इस केस में आपको C की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो ऊपर वाले केस में भी आप C हटा सकते हो, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। यू कैन राइट, यू कैन असाइन अ सीरीज विद द हेल्प ऑफ कोलोन। All right. Now, if you look at your screen, let me see, because it is hidden from. So your x is numeric and y and z are integer. And do you think there is any difference in the input? 5 और 6 भी नंबर है आपके लिए, 1 और 10, 1 to 10 भी नंबर है। All right, so anyone? So, okay, so integer means that it does not contain any decimal values, right? And numeric means it can have a decimal too. So while this is known as a user input values जो आपने खुद से डाली है, and this is a predefined series जिसका एक स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, राइट? So that's the reason that the function is designed in such a manner that every value will come out to be a integer. Sir, please repeat once again this. Okay, so जो ये कॉलोन वाला फंक्शन है, ये इस तरह से बना डिजाइन है कि इसमें एक सीरीज जनरेट होनी है, राइट? और सीरीज मेरा 1 2 3 4 इस तरह से ना, यानी इंटीजर ही आना है, तो इसलिए उस बाय डिफॉल्ट उसका टाइप हमेशा इंटीजर आएगा। बट एज ए इंडिविजुअल मैं अपने जब वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ, राइट, इस तरह से मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, राइट? So that's why it is open. That's why we are taking it as a numeric. कि आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू असाइन करोगे तो भी न्यूमेरिक बनाऊंगा, और न्यूमेरिक लिखोगे तो भी न्यूमेरिक है मेरे लिए। So
मोटा मोटा बात ये है कि दिस इज अ प्री डिफाइंड थिंग। आपने कोलोन लगाया, एक सीरीज जनरेट हो गई, तो उसका टाइप भी पहले से डिफाइन कर दिया कि न्यूमेरिक है जी, क्योंकि सारी वैल्यू सॉरी इंटीजर है, क्योंकि सारी वैल्यू इंटीजर ही आने वाली है, राइट? No, Anush, this doesn't mean decimal value. Colon means to create a series. This is start point and this is end point, kind of range of number. हाँ सर, मतलब सीरीज तो जनरेट होती है, पर इसमें जो टाइप होता है वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही होती हैं, कोई डेसिमल वैल्यूज नहीं होती। वो क्लियर करना चाह रहा था। हाँ जी, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। Okay. The next point is a vector has only one dimension, that is either a row or a column. So you must have worked on Excel by now, right? Excel तो सब लोगों को आता ही है, और नहीं आता तो मैंने आपको चैनल भी बता दिया, YouTube पे जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चालू भी कर दो। तो एक्सेल में क्या 2 डायमेंशनल डेटा होगा आपके पास, एक रो होगा, एक होगा कॉलम, और ज्यादातर डेटाबेसेस 2 डायमेंशनल डेटा शेप में ही होते हैं, राइट? However, वेक्टर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, 1 डायमेंशन। या तो इसको आप एज अ वन सिंगल रो समझ लो या एज अ कॉलम समझ लो। In a mixed data type vector, if character is present in a vector, then it will take it as a character vector. जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर कोई भी एक वैल्यू कैरेक्टर आ गई तो सारे वैल्यूज कैरेक्टर हो जानी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट दिस वन, जहां मैंने इंटीजर यूज किया है, स्ट्रिंग यूज किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज किया है, बुलियन यूज किया है, एंड इफ यू चेक द क्लास ऑफ दिस वेक्टर ए, दिस इज अ कैरेक्टर क्लास। So quickly practice all these all 3 examples. So there are 2 questions on my screen. First is a private, in the private chat box. Last okay. So Karthik, you need to use small c before all this, like this. So the example which is on your screen, if you are assigning multiple values of different data types, then you need to use concatenation. Or if you have assigned more than one value to a vector, you should use small c. Can we bring sir? Yes, please. Sir, Nishita this side. I have a Yeah. query. We are using the integer value, right? If we want to create a vector like 2.2 to 7.9, so how will it the values between those? How would it take? Are those will be random or what? So again, there are functions by which you can create your range, right? And you can In define, decimal yes, in decimal. yes, in decimal, and you can define your increment. For example, if you want to increase every value by 0.2, 0.25, something like that. So I did actually tried it, and it has taken some random value in it. Which function did you use? I didn't use anything. I just defined one variable with the range of 2.2 colon 7.9. Okay, so you are saying that you tried with 2.2 colon 7.9, right? So yeah, just it gave me the one incremental value. But if we want to have some different range in this, no. So that's a reason that this colon is used to increment every value by 1 only. okay. This is a simple increment, like. But if Okay. you want to make it a little complex, so there are functions which you can use.
Oh, okay. So I will tell you which all function you can use. So everything is, so one thing you should remember, when I started learning R, there was 5,000 libraries, which means 5,000 different solutions were there. Now it is more than 12,000. So आपके दिमाग में जो आता है ना, किसी ने उसके लिए पहले से कुछ सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, इतना समझ लीजिए. All right. Okay. The only Okay. only challenge is that how we reach out to that particular thing, and we will gradually learning that thing, that how to find solution for your requirement, right? Okay, sir. So I will keep on giving you more scenarios, more examples, so that you will be able to reach to the goal where you want to reach, right? For any problem, how to find a solution, how to find a function, how to find a full solution. So I will teach everything. All right. So for now, I will appreciate if you just concentrate on the example which I am trying to share with you, so that we can utilize this time for rest of the group in a better way, because you can have a 10 different question on one particular example, right? And I am not stopping you to ask question. I'm just simply saying, if you have question, please note it down somewhere. After 2 or 3 class, 80 to 90% question you will be able to answer yourself. I'm not saying 100%, but yes, 80 to 90% question you will be able to answer those questions. Because the thing is, I am going step by step, and your brain could jump up to a step 5 or step 7, right? और ऐसा होता है. Right, so moving on to the next thing, Ankit, can we print the same in column one under the another? I will show you this example with an example, Ankit. Okay. Okay, a vector is on your. This is done. Vector can be combined by C. You all know by now. A rep function replicate vector again and again. So if you look at this example, so there is a function by name of replication. So REP 1:3 comma times is equal to 2, which means the series which you are creating over here, you want to convert it, or you want to replicate it 2 times, right? Now this is one thing which I have shown you. Now how to know more about this function? So I'm taking you to my R Studio. So let's say we have used a rep 1:5 comma times is equal to, not this time. Right. Now there might be some so 1:5 is your one parameter of function rep. So rep is your function, right? This is your one parameter, right? This is your second parameter. There could be few more parameters, right, for this function, and which you can asking a question in the R Studio, and it will describe in the help window. You will find its answer. अगर किसी फंक्शन के बारे में आपको ज्यादा पता करना है कि उसमें और क्या क्या आप कर सकते हो, तो यू कैन लीवरेज आर डॉक्यूमेंटेशन. और इन द बिगनिंग मैंने बोला था कि हर चीज आपको हमेशा याद नहीं रहेगी, राइट? जैसे बोला इसने, यूजर रेप एक्स, rep integer x comma times rep underscore length. Now if you go a little lower, what is the meaning of a vector, right? Times an integer value vector giving the non-negative number of times to repeat each element of. So
तो टाइम सलीम यहाँ पे वो है कि कितनी बार इस वेक्टर को आपको रिपीट कराना है। Each element of x is repeated each time. Other input which is coerced. So for example, अब मैं each use करता हूँ, मैंने एक नया वर्ड सीखा है यहाँ पे each. Alright. So let me try this with an each. अभी क्या किया इसने हर एक वर्ड को रेप्लिकेट कर दिया उतने टाइम्स। पहले वो पूरे सीरीज को रेप्लिकेट कर रहा था, लेकिन अब पहले इसने एक ही एलिमेंट को रिपीट करना चालू किया। Now if you scroll down, you will find more details, and in some of the cases you will also find examples, right? Yeah, so example, you can find the example like this. So you can explore these examples. All right. Now coming to the vector arithmetic, right? We can perform the normal arithmetic operation on the vector. For example, if we multiply a vector x by 5, then we get a vector which each of its members multiplied by 5. Example number 1. So क्या हो रहा है कि आपने जैसे किसी वेक्टर के साथ किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। Similarly subtraction, similarly addition. So I am giving you 1 minute time to practice these examples. Okay, so Bridges has a question. Why the question mark was put before that? Okay, thank you, Bridges, for this question. So the question mark which we use, it is used to seek, right? There is a word help. You can also use that thing. Or you can use question mark. So क्वेश्चन मार्क करते क्या आपके लिए आर के उसके डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर देता है। नाउ देयर विल बी सिचुएशन कि आप कुछ ऐसा फंक्शन सर्च करोगे जो कि उस समय लोड नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल लेट मी शो एन एग्जांपल क्वेश्चन मार्क। So did you see no documentation for R part? Now it is saying you could try double question mark. So the moment you put a double question mark, it will show you program when it is not loaded, how it was installed, like this. तो सिंगल क्वेश्चन मार्क से आपका जो लोडेड प्रोग्राम थे सारे वो दिखा दिए। डबल क्वेश्चन मार्क से आपको इंस्टॉल प्रोग्राम के बारे में बता दिया।
सो एक बार प्लीज डबल क्वेश्चन मार्क वाला समझाइएगा दोबारा से। ये जब मैं सिंगल क्वेश्चन मार्क आर पार्ट किया, इसमें को मैसेज नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर आर पार्ट इन स्पेसिफाइड पैकेज एंड लाइब्रेरी। तो इस समय मेरे पास कुछ पैकेज और लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हैं, सॉरी इंस्टॉल बोलो, लोडेड है। हाँ जी। जैसे बेसिक होगी लाइब्रेरी, जो इसकी डिफॉल्ट लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल्ड है, राइट, सॉरी लोडेड है। लोडेड का मतलब जब मैं इस पे इस तरह से चेक बॉक्स क्लिक कर देता हूँ, राइट, तो ये लोड हो गई। अब इसके अंदर जो फंक्शन होगा उसके बारे में बता देगा। तो लेट मी शो यू आर पार्ट वाला ही मैं आपको एग्जांपल दौर से शो करता हूँ। ये मेरे पास अभी क्या है, इंस्टॉल्ड है, लोडेड नहीं है। अब लोड होने के बाद ये सिंगल क्वेश्चन मार्क से मेरे को आंसर कर रहा है। तो जो पैकेज मेरे पास लोड होगा उसको अगर उसके बारे में अगर जानना है तो सिंगल क्वेश्चन, और अगर मेरे पास सिर्फ इंस्टॉल्ड है तो डबल क्वेश्चन मार्क से भी आंसर करेगा। और मेरे पास लोडेड भी नहीं है, इंस्टॉल्ड भी नहीं है, देन हाउ यू विल फाइंड द सॉल्यूशन? गूगल देवता का नाम सुना है? इसका सर गूगल देवता, right? So then we will search it on Google. Now what all sites you should be looking at Google? 50 चीजें आएंगी, right? So first one is art documentation है, CRAN, these are the official thing, right? Now you can leverage this site, which is r-bloggers.com. And you can even ask your questions on this blogging site. And you will find, excuse me, you will find answer to your query. If it is really challenging, then definitely you will find 4 to 5 solution. And if it is very generic and someone has already answered this, then they might insult you. So be very cautious while asking the questions over here, because they are putting time to solve your problem, right? So you should do your homework before asking a question. So you have multiple places where you can seek help, right? First a simple question mark, double question mark, and Google Baba, right? Thank you, Hemant. Sir, loaded हो तो single question mark. हाँ जी. Installed हो तो double question mark. अच्छा, और कैसे मान पड़ेगा इंस्टॉल हुआ है कि लोडेड हुआ है? ओके, तो इसका आंसर मैं करता हूँ। तो पैकेज के टैब में आप जाओगे, जो पैकेज इंस्टॉल्ड होगा वो तो यहाँ दिख जाएगा आपको, सारे इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, राइट? इंस्टॉल्ड है, अच्छा। हाँ जी, दिख रहे हैं ना, सामने इंस्टॉल्ड है। ये लोडेड का मतलब है तो किसी जिन पे ऑलरेडी टिक हो रखा है, मतलब वो लोडेड है, वो और बाकी सारे इंस्टॉल्ड है, बाकी सारे इंस्टॉल है। तो किसी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमने install.package करके कमांड होती है जिसको आप यूज कर सकते हो। लाइक अभी मेरे पास तो सारे पैकेज इंस्टॉल है तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि टाइम भी जाएगा। यू कैन यूज दिस कमांड, राइट? ओके सर, थैंक यू। सर install.package इसका कमांड बना देता हूं। वन क्वेश्चन, हमें ये कैसे पता चलेगा हमें कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करना है, कौन से नहीं करना है, क्या चाहिए होगा क्या नहीं चाहिए होगा? ओके, तो आंसर इस क्वेश्चन की कौन से पैकेज आपको जरूरत होगी,
योर फर्स्ट आंसर इज कि मैं बताऊंगा, राइट? ओके सेकेंड, जब आपको पता लग जाएगा तो आपको खुद ही ढूंढना आ जाएगा कि मेरे को कौन सी चीज कहाँ से ढूंढनी है। ओके, आपको जब बेसिक नॉलेज हो जाएगी ना कि मेरे को ये 4-5 चीजें तो यहीं से मिल जाती हैं, अब इसके अलावा कुछ और ढूंढना है, देन डेफिनेटली यू विल सर्च फॉर गूगल बाबा our package for let's say support vector machine। तो आर ब्लॉकर में इसका आंसर दिया, देखो पैकेज का नाम आ गया E1071। बस आपको पता है ये पैकेज इंस्टॉल करने इस काम के लिए। ओके सो ये हो गया आपका हाउ टू सीक हेल्प एंड हाउ टू इंस्टॉल अ पैकेज। सो इस पैकेज इंस्टॉल करने में दो तरीके रहते हैं, एक तो ये इंस्टॉल वाला ऑप्शन आपका, राइट? दूसरा ऑप्शन है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे विच इज थ्रू कमांड। तो इंस्टॉल डॉट पैकेज ऐसे लिखना है, फिर लिखना है डिपेंडेंसीज इक्वल्स टू ट्रू, केवल टी भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस पैकेज की और भी कई डिपेंडेंसी है वो भी इंस्टॉल हो जाए साथ में। ऑलराइट, नाउ हाउ टू लोड ए, तो हमें आगे सर्च चेक तो नहीं करोगे। टू लोड अ प्रोग्राम यू कैन यूज लाइब्रेरी फंक्शन एंड यू टू लाइक कार, राइट? मैंने जैसे कार टैप किया और कंट्रोल एंटर प्रेस किया, लेट मी शो यू CAR कार एंड कार डेटा पे चेकबॉक्स आ गया, क्योंकि ये डिपेंडेंसी है तो ये भी लोड होगी साथ के साथ। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? बिकॉज मैंने काफी देर से अपना ये नहीं देखा चैट बॉक्स। ओके, लेट मी सी। सर एक प्लीज इसके बाद ये लाइब्रेरी वाला समझाना, मतलब समझ नहीं आया मेरे को। ओके चलो लाइब्रेरी वाला मैं समझाता हूँ। ये मैंने हटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है, सॉरी लोड नहीं है, सॉरी इंस्टॉल तो है, लोड नहीं है, लोडेड नहीं है। लोड करने के लिए मेरे को ये लाइब्रेरी के अंदर पैकेज का नाम लिखना होगा और विदाउट कोट्स। जब इंस्टॉल करते हैं तो कोट्स लगाते हैं। अब चूंकि ये चीज आर के अंदर आ चुकी है, इसको आर पहचानता है तो उसको बगैर कोट्स के पहचान लेगा, राइट? ठीक है। तो लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। कोई भी पैकेज सामने देखना है, ए बाइंड, राइट? ABIND हो गया लोड। और हटाना है तो डिटैच, राइट? एंड वी कैन राइट पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसका कमांड पूरा ये रहा, लुक एट दिस पैकेज कोलोन दिस अनलोड इक्वल्स टू ट्रू। So this way you can unload. So there are few things which डिटेल्स तो हमें जरूरत पड़ती नहीं है वैसे तो इतना। मेन है लाइब्रेरी, हाउ टू लोड, हाउ टू इंस्टॉल एंड हाउ टू लोड, राइट? अभी और भी करेंगे इस पे काम, so you will become familiar with this, so don't worry। वापस आते हैं वेक्टर पे, राइट? जो कि हम आर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं, राइट? तो वेक्टर हो गया मेरा एक, इसका मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ही सिखा दिया, राइट? आप
ऐसे मान के चलो एक्सेल का एक कॉलम है एक, राइट, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर है 1 to 5, उनके सामने आपने किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। Now next example. So, now what will happen if you add two vectors of same length? So when I'm saying same length means vector A has a length of 3, vector V has a length of 3. Yes, Nikita, you can get the suggestion in the so suggestions mean you're talking about the intelligence, Nikita, or you are asking about this question mark thing? Yes. At time you will get so many warning messages, notes that can help you to, you know, to run your program successfully. But not for the everything. So once you add two vectors of same length, the addition would be 1 plus 3, 5 plus 7, 9 plus 11. So element 1 will add to element 2, element 1 of second vector, element 2 of first vector will add to element 2 of second vector, and so on. Same goes for the so this example, Aditya, is of a same length of vector, right? Now, I will come to that example when the vector length is not same. So you can practice all 1, 2, 3, and 6 examples. I'm giving 1 minute time to practice this. So Vassal, if you do not have any question, you can put yourself on mute, please. Thank you. No worries, and Vassal, it happens. You know. Sir. Hello. Yeah, Jatarth. Sir, my question is, suppose so now how we need to write it in R? So if I want to add A plus B, then do I have to write like A, then the string, and plus B, then the string like this? So Jatarth, you know Python, right? No, sir, I don't. Okay, so forget about that. I'm a totally fresher in this field. Okay, so forget about that. That you can add a string, right? Okay. Right.
I hope everyone has completed these examples. So moving Sir, one to the question. next slide. Yes, please. One question. जिसमें लास्ट वाला वो है modulo operator. What is that? वो क्या होता है वो मेरे को नहीं आता. ओके, मॉड्यूलो कौन समझाएगा ग्रुप में से? आंसर मिलने लगे, पर्सल देखो, रिमाइंडर. ओके, ठीक है. थैंक यू. वेलकम. ऑलराइट. Okay, moving on to the next slide. Okay, so before the next thing, now I will appreciate if you can create two vectors of unequal length. All right. So one vector is, we use a pen. Your A is, let's say, 1 to 4. And your B should be 1 to 5, or 1 to 7. You can make it 1 to 7. Vatsal, so there is no question which is a stupid question, so don't worry. Thank you, sir. So now you have created two vectors, 1 to 4 and 1 to 7. Now I will ask you to add this A plus and do this operation, A plus B. Error आगे? Upon adding that, we see that there's an error that comes that the multiplier that object length is not a multiplier of the shorter object length. So mind it, this is not an error. Okay? ये error नहीं है. This is a warning. And there is a difference between error and warning. Warning के बाद भी आपका काम होगा. Error में काम होगा ही नहीं. So what it is saying, if इस warning से ऊपर देखो इसका आउटपुट भी आ चुका है. इसका आउटपुट आ चुका होगा 2 plus 2,4 something like that. इतना क्या सोचना. Let me show you this thing. हाँ राइट, आगे ना आंसर. उससे आपका आउटपुट आ चुका है राइट, वार्निंग से पहले. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज सजेस्टिंग यू कि जो आप कर रहे हो ना उसका ना लेंथ इक्वल नहीं है. इसलिए आपका जो छोटा वेक्टर है राइट, वो रिपीट करेगा इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर बिगर वेक्टर. तो क्या होगा, वापस से वो आपको रिपीटेशन चालू कर देगा. लेट मी शो यू विद in our studio. So what I told you to do is 1 is colon 4, right? And then I ask you to write 1 colon 7, right? And now A plus B. So 2, 4, 6, 8, right? अब इसके वापस से रिपीट होगा तो 1, 2, 3, 4 होगा. 5 बड़े ऑब्जेक्ट में 5 बचेगा. वो वापस से 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, 7 plus 3 10, and that's it. Now create one more object, one more example with this 1:4 and 1:6. You're still getting that?
warning message that it is not a multiple of this. Now changes to 3. And there is no warning message, right? Simple output. सर ये क्यों? क्योंकि अब लेंथ पूरी मिल गई, तो 1:3 2 बार रिपीट हो सकता है फुल लेंथ में। ठीक है, समझ गया। और सर ये ब्रैकेट हर बार यूज करना कंपलसरी नहीं होता? विच ब्रैकेट? सर जैसे हमने ऊपर यूज करा था, मतलब ब्रैकेट्स में डालते थे ना हम, ये 1:4 हमने डाला था, जैसे हमने ऊपर जो डाला हुआ है ABC जो आपने डिफाइन करा था। हाँ अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो ये? हाँ जी। हाँ, इसको आप इसके बना भी असाइन कर सकते हो, मैंने दूसरे एग्जाम्पल में बताया भी था, राइट। बट अब आपको मैनुअली अगर वैल्यूज लिखनी है, राइट, एक के अंदर आपको ऐसे खुद से लिखना है, तो 1,2,3 उससे पहले C लगेगा और ब्रैकेट भी आएंगे, खुद से लिखना है तो। Sir, can you please repeat this length Sure. of A which you have changed? Sure, let me show you। तो किस तरह से हुआ था ये काम। तो मेरा A के अंदर क्या है, 1, 2 and 3, राइट। अब जब मैं B के साथ इसको ऐड करने गया, तो 1, 2, 3 यहाँ पे एडिशन हुआ। फिर क्या हुआ, B की लेंथ बड़ी थी, उसमें 4, 5 and 6 था, तो इसने अपने आप को वापस से रिपीट किया और फिर से यहाँ लिखा 1, 2 and 3। So now you see the output. Two, 4, 6, 5, 7, 9। और इस बार वार्निंग मैसेज क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ पूरी की पूरी मैच कर गई। If this could have been a case where एक भी एलिमेंट शॉर्ट होता, then you will see this with a warning message। काम तो फिर भी होता, लेकिन with warning message होता। Is this clear? निकिता कुछ भी केस करोगे, अगर लेंथ मैच करेगी, राइट, फॉर एग्जाम्पल, तो इट इज ऑल ऑन द लेंथ। लेंथ इक्वल मिलेगी और रिपीटेशन के बाद भी लेंथ इक्वल मिल जाएगी, देन देयर इज नो वार्निंग, अदरवाइज यू विल गेट अ वार्निंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now relational operation using vector। रिलेशन ऑपरेटर क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन। यस अनुज, बट उसके लिए फिर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और उसके डिफरेंट पैरामीटर भी हैं। सर एक जस्ट टू स्टॉप इन बिटवीन, जो आपने अभी एग्जांपल दिया था जो रेंज 1 to 3 और 1 to 6 है, तो वो उस समय एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि 1 to 3 दो बार में रिपीटेड है, करेक्ट? यस। बट सर वही केस अगर मैं कोई और ले लूं, जैसे कि मतलब सेम मैं रैंडम नंबर्स दे रहा हूँ, ये ओनली केस है कि जब हम एक सीक्वेंस में नंबर्स दे दें, अगर रैंडम नंबर लूंगा तो भी काम करेगा, तो भी काम करेगा। लेट मी शो यू एग्जांपल दे दीजिए सर एक बार बस। हाँ बिल्कुल। कितने हो गए, 1 2 3 4 हुए ना।
ठीक है। तो इसको वेक्टर की लेंथ से मतलब है, लेंथ अगर इसकी 3 है, राइट, so let me show you how to check the length of a vector. अभी आ गया 3, arrange the length of B. तो मल्टीपल है देन देयर इज नो इश्यू, अगर मल्टीपल नहीं है देन इट्स इश्यू, राइट। क्लियर हुआ? हाँ, मतलब अगर लेंथ जो है, अगर मान लो अगर वो 3 है उसका मल्टीपल होगा, अगर वो 3 और वो 7 हो तो वो ऐड नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, लेकिन विद वार्निंग होगा। ओके, एडिशन तब भी होगा लेकिन विद वार्निंग की होगा, इस केस में वार्निंग नहीं आएगी बस। सर All right, so quickly complete these few examples. अनुज, रेंज फंक्शन आई विल कम टू दैट, थोड़ा वेट कर लो, फंक्शंस पे भी बात करेंगे हम आराम से। अभी पहुंचेंगे अनुज वहां तक। अभी हम ना, मेरा फोकस है अभी आपको डेटा स्ट्रक्चर से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है, राइट। डेटा स्ट्रक्चर से ज्यादा आपको पता लगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, देन फंक्शंस पे भी आएंगे लेटर ऑन। सर एक प्लीज प्रीवियस स्लाइड पे जाना। थैंक यू। All right, so now the time for the homework. किसने नहीं किया? Sir, I have a question. What is this equal to operator, double equal to? यथार्थ, अच्छा, डबल इक्वल टू का मतलब है इक्वल टू, जो दूसरे लैंग्वेजेस में इक्वलिटी चेक करने के लिए होता है। मतलब this is also equal to, simple equal to. दिस इज इक्वल टू, Okay. सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए। अच्छा, and अच्छा, this is not equal to. Okay. Okay. Thank you sir. होमवर्क किसने नहीं किया? एक क्वेश्चन है सर, मेरे केस में a इक्वल टू 1:4 क्या 1 to 4 एंड b को क्या 2:5 2 to 5 एंड a इक्वल टू b क्या तो 2 2 आया, क्यों ऐसा है? a is 1 to 4 and b is 2 to 5, then why should a equal to b true? आपने पता क्या, आपने रन नहीं किया होगा शायद, जो दोबारा में लिखा है ना, एक बार चेक कर लो। अच्छा जब अपना या अपना कोड मेरे को यहाँ पिंग कर दो, मैं उसको रन करके दिखा दूंगा। हाँ, कैसे करें? आपने लिख दिया होगा शायद, रन नहीं किया होगा रोहित जी। हाँ जी, रन कर दो दोबारा से।
लिखता हूँ। आप बताओ, मैं वहीं पे आपको दिखा देता हूँ, अब बोलो। A equal to 1:4 and B equal to 2:5 and A equal to B 2:2 आया चारों में। ए फिर यार A equal to 1:4 किया ना मैंने, फॉल्स वो आ तो रहा है मेरे को सारा, कौन सा था? देखो सामने है आपके। A equal to 4 B equal to कि प्रणव ले लिया उसने, प्रणव ले लिया उसने। देखो कभी भी ऐसा डाउट हो ना कि आंसर गलत आ रहा है, तो एक सजेशन है, गो क्या? टू योर एनवायरमेंट और जाकर के वहाँ वैल्यू चेक करो कि आप जो देख रहे हो, जो आपने लिखी है वही वैल्यू है। होता क्या है, जब मैं ना प्रोग्राम लिखा मैं इसे रन नहीं किया और मैं जाकर के सीधे ये रन कर दूं, तो जो अच्छा पुराने टाइम पे आपने बी होगा वो उससे आके चेक करेगा, समझ गए। वैल्यू तो ओवरराइट तो हुई नहीं। अच्छा ठीक है आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, सॉरी। हाँ जी, होमवर्क पूछ रहा था मैं, कितनों ने नहीं किया। नहीं, मैंने थोड़ा सा किया। I read that, I saw the movie parts of some parts. I couldn't have get the full, पूरा मूवी देख नहीं पाया मैं। I tried अच्छा, the main part देख लिए, 5 पार्ट मेन पार्ट देख लिया। उसमें एक प्रोबेबिलिटी देखा था मैंने। वर्क इन प्रोग्रेस है, बाप रे बाप। अच्छा, इतनी इंटरेस्टिंग मूवी को लोग आपने पार्ट में देखा। अच्छा, मेरे को वो लगता है बेसबॉल सिर्फ मैं था, ही ऐसा। जो लिंक टू बेसबॉल इज नॉट लिंक टू एनालिटिक्स एट ऑल। एक ही केस था जिसमें वो कैलकुलेट करता है हाउ टू सिलेक्ट द प्लेयर्स। तो वो मैं देखा था, उसमें उसने कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू लिया था शायद, कुछ। Yes, so this is a true story हाँ and Oakland, Orlando Oakland ऐसे कुछ टीम का नाम था। So they used this analytics in the sports. That हाँ is जी। first known case जहाँ पे ये इतना इतना वास्टली यूज हुआ था। अच्छा ऑकलैंड है, राइट। सो वहां से पॉपुलरिटी हुई थी, स्पोर्ट्स के अंदर भी एनालिटिक्स को यूज किया जा सकता है। अच्छा, ये मूवी है नहीं क्या अमेज़न प्राइम या हॉटस्टार कहीं है ही नहीं? चल, नाइट भी एचबीओ वगैरह, नॉट इवन नो। ओके, व्हाट इज दिस फुट ब्लॉकर? सो व्हाट्स द होमवर्क वाज कि एक मूवी देखने को बोला था, जस्ट टू मेक यू अवेयर दैट कि how people are using how people have used analytics to win games. Okay, Footlocker is something. Okay. मूवी का नाम भी बता दो। लास्ट क्लास में अटेंड नहीं करी थी तो मैं देख लूंगा। अच्छा, ये मनी बॉल। मनी बॉल वो तो देखी भी है। हाँ, अब देखना है दोबारा से, अब नजरिया बदल जाएगा आपका, अब नजरिया दूसरा होगा। ठीक है सर। All right, so let's move on to the next slide. This I'm skipping for a reason. Now vector index. I will keep on giving you some interesting homework. Don't worry yourself. So कल मिलेगा वो पूरे हफ्ते के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क मिलने वाला है। In order to access the values in the vectors, we need to use the box bracket. So index number सबको समझ में आता है। So for example, जो डबल ए लिखा हुआ है उसका इंडेक्स वैल्यू 1 है, डबल बी लिखा हुआ है वो 2, ये 3, ये 4, ये 5, राइट। Now if I want to see this object, this element of this object, I can simply write the name of the object and I can provide its index number, right, and it will print that element for me.
तो करेगा क्या, आपको अगर इस आपका वेक्टर एस है जिसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, जिनके अंदर ए बी सी डी इस तरह से एलिमेंट की वैल्यूज है, अगर मेरे को थर्ड एलिमेंट देखना है, राइट, अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में तीसरी रो में क्या डेटा है, एक्सेल की लैंग्वेज में बात करूं, वो देखना है तो किस तरह से देख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम और वेक्टर का नाम फॉलोड बाय give me a second, right, then square bracket, right, now if you want to remove third value in vector, right, तो आपने कहा s minus 3 and square bracket, तो इसका मतलब हुआ थर्ड वैल्यू के बिना वेक्टर, नेगेटिव सिंबल का मतलब हुआ ये संकेत आर है इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सेलेक्ट अ वैल्यू आउट ऑफ वेक्टर लेंथ, अगर आपने कोई चीज उसके वेक्टर लेंथ से बाहर रेंज में मांगी तो वो एन आपको आंसर दे देगा। एनी क्वेश्चन ऑन दिस 3? अभी इधर मत देखना, अभी मैं सिर्फ इधर की बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। वन क्वेश्चन, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सर रिमूव करने के लिए जैसे आपने इसमें बोला है, उसमें हम वो डिलीट वाली कमांड यूज नहीं करते हैं, या रिमूव हम ऐसे करेंगे क्योंकि हम एक स्पेसिफिक वैल्यूज पूरे सीरीज में से डिलीट करने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये क्लोज ब्रैकेट यूज करें ताकि वो एक स्पेसिफाइड से वही चीज डिलीट हो जाए। ये वो उस इंडेक्स की वो वैल्यू रिमूव हो। आई एम यूजिंग द वर्ड रिमूव नॉट डिलीट, राइट, एंड देयर इज अ रीजन। अब जाकर के अपने एनवायरनमेंट में देखो, इसको रन करने के बाद आपकी सारी वैल्यू एज इट इज है वहां पे। So what you are doing, you are trying to access that value, right? तो जब आपने s इंडेक्स के अंदर 3 डाल के लिखा तो आपने इस वैल्यू को एक्सेस किया वहां से और उसका आपने आउटपुट देखा। उसी तरह से आपने -3 को हटाने के बाद बाकी वैल्यूज को एक्सेस किया, वैल्यूज हटी नहीं है वहां से। अच्छा, उसके बिना हमको दिख रहा है, वो दिख रहा है। अगर आपको इसके बिना अगर वैल्यू हटानी है, राइट, नाउ आई एम यूजिंग वर्ड डिलीट, तो आप क्या कर सकते हो, लेट मी शो यू ऑन आवर स्टूडियो। सो व्हाट यू कैन डू, मैंने एक वेक्टर बनाया था s इक्वल टू 3 जिसके अंदर वैल्यू थी a कॉमा bb राइट, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ -3। तो अभी कुछ लोग ना ऑफ फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी द एग्जांपल व्हिच वी आर डूइंग, वी आर जस्ट एक्सेसिंग एलिमेंट बाय इंडेक्स वैल्यू। हम इंडेक्स वैल्यू के साथ एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया है किसी ऑब्जेक्ट के, वो देख रहे हैं। तो आपने देखा ए बी सी डी डी ई है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपको यही वैल्यू डिलीट करनी है तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। कितने लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखी हुई है? अब कुछ लोगों से जरा मैं पूछ लूं, क्योंकि आवाजें कुछ लोगों की तो बिल्कुल ही नहीं सुनी मैंने अभी तक। हाँ, सूरज आगे समझ में?
एक बार बताओ क्या किया हमने इसमें। वेरी गुड सिल्वी, थैंक यू। शायद जब मैं एग्जाम्पल बताया था आप ऑफलाइन हो गए थे। तो सिल्वी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने एक वेक्टर बनाया, उस वेक्टर के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका क्या है, उस वेक्टर से हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन फॉर एग्जांपल मेरे को सेकंड एलिमेंट देखना है तो 2 इज अ इंडेक्स नंबर, तो आउटपुट क्या आएगा, बीबी, राइट। उसी तरह से अगर कोई एलिमेंट हटाना है मेरे को या उसके बिना मेरे को अपना वेक्टर देखना है, मतलब फोर्थ के बिना 1 2 3 4 फोर्थ वैल्यू के बिना वेक्टर देखना है तो माइनस सिंबल लगाऊंगा एंड देन आई कैन सी ए बी बी सी सी डी डी गायब हो गई है। लेकिन Okay, इसका so मतलब ये कि इसमें DD, से डिलीट नहीं होता उसमें से, दिस इज सिंपल आउटपुट। got it. जब तक इसको Basically, you assign, did not want DD in your output, right? yes, right. And if I want to delete it from the S, I'm assigning the rest of the value in S. तो मैंने बाकी की वैल्यू भी S के अंदर असाइन कर दी, अब ये जाकर के चेंज हो जाएगा। Okay. But now if I print S, CC गायब हो गया। Yeah. Alright. सर ये जो आपने अभी ये वाला फंक्शन शो करा है, इसमें आपने डिलीट कर दिया ना थर्ड सीसी को। हाँ, राइट, इसमें डिलीट हो गया ना, क्योंकि मैंने असाइन कर दी। तो वो दो चीजें प्रोग्रामिंग में हमेशा एक चीज बोलता हूँ, बहुत रिपीटेडली बोलूंगा अभी आगे, जो बोलोगे जितना बोलोगे उतना ही काम करेगी ये। यहाँ पे क्या बोला, दिखा दो जी इसके बिना, दिखा दिया। यहाँ बोला जी इसको ना असाइन कर दो इसके अंदर, तो असाइन कर दिया, असाइन करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ठीक है। देयर फ्यू मोर एग्जांपल। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज देखनी है, ये सिलेक्ट करनी है, देन यू कैन यूज Sir, yes, equal to same thing. Equal to an assigned thing is same thing or not different? हाँ हाँ हाँ, एक ही चीज है। Yeah. हाँ जी, एक ही बात है। Okay, sir. Thank you. ओके, अब अगर आपको दो तीन वैल्यूज एक साथ देखनी है, देन यू नीड टू अगेन यूज अ वेक्टर। आपने क्या किया, आपको सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट देखना है तो उसका भी आपने एक वेक्टर बना करके असाइन किया हुआ है। और अगर सेकंड और थर्ड एलिमेंट के बिना देखना है तो आप क्या करोगे, हेलो, -3 -2 माइनस नहीं, माइनस सी भारी लगा दो, एक बार सी सी के आगे लगा दूंगा ना, दो बार क्यों लिखूंगा माइनस सी 2,3। Yes. 2,3 है, 2,3। सर ये समझ नहीं आया। अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू देखनी है, राइट, ये मेरा एस है जिसका आउटपुट आ गया। अब आपको एस की 2,3 2 और 3 देखना है, राइट, तो ये एरर शो करेगा, इनकरेक्ट नंबर ऑफ डायमेंशन, राइट। क्यों, क्योंकि उसको पता ही नहीं 2 और 3 क्या बात कर रहे हो आप। तो उसका आपको एक वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि ये बताएगा 2 मतलब सेकेंड एलिमेंट, 3 मतलब थर्ड एलिमेंट। क्योंकि आपको पहले भी मैंने बताया था कि सिंगल वैल्यू के अलावा और कोई वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते हो एक साथ। तो अभी क्या हो गया, अब आपने एक वेक्टर बना लिया, राइट, ये। तो अब आपको सेकंड एलिमेंट भी दिखाएगा, थर्ड एलिमेंट भी दिखाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जो राजकुमार जी बोलना चाह रहे थे, ये भी सेम बात है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि सर
अगर नेगेटिव सिंबल लगा दोगे तो क्या होगा, अगर मेरे को इसको इनको हटाने के बाद देखना है तो बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में होगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट में। सलीम, टू आंसर क्वेश्चन, सेम चीज होगी तब भी। All right, done. Quickly, let me check. Okay. So the next data structure is matrix. ये हमने वेक्टर की बात कर ली। दूसरा जो डेटा स्ट्रक्चर वो क्या है, मैट्रिक्स, जो कि ज्यादा यूज नहीं होगा। ये मैं आपको सिर्फ गुड टू नो के हिसाब से समझा रहा हूँ, राइट। एक होता है नीड टू नो, तो वेक्टर और डेटा फ्रेम आर नीड टू नो, जिनका काम नहीं चलेगा, बट दिस इज गुड टू नो वाली थी ये, और लिस्ट। पर इसका तो ये नहीं कि आप ध्यान नहीं दोगे, राइट। मैट्रिक्स इज ए 2-dimensional डेटा ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सबको पता है बचपन से। The value must be of the same mode, that is all numeric, all character or all logical. Default syntax समझ लेते हैं इसका। मैट्रिक्स फंक्शन का नाम है कैपिटल एम गलत लिख गया है, MATRIX। डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे डेटा जो भी जिसका भी मैट्रिक्स बनाना है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। एन रो का मतलब नंबर ऑफ रो कितनी बनानी है उस डेटा से, एन कॉल का मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितने बनाने हैं। नाउ बाय रो इज इक्वल टू फॉल्स, तो देयर इज ए पैरामीटर बाय रो। इसका मतलब है कि आपको जब वैल्यू असाइन करोगे ना, अब आप इनको ऐसे भी लगा सकते हो, वैल्यू को ऐसे भी लगा सकते हो। तो असाइनमेंट कैसे होगा, बाय रो इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये रो वाइज असाइन कर देगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और बाय रो इक्वल फॉल्स का तो ये कैसे आएगा, कॉलम वाइज, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड सो ऑन। डिम नेम जो डायमेंशन के नाम आपने रखते हैं वो उसके लिए है, राइट। तो यथार्थ एक काम करते हैं ना, करके देखते हैं तो जल्दी समझ में आता है। आप लिखो माई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। चलो मैं आपको ना देखिए एग्जांपल से समझा, इस एग्जांपल को छोड़ो तो भाई, और सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अब आप बनाओ यहाँ से 1:16, राइट। 1:12 कर लो, थोड़ा अच्छा बनेगा। ठीक है, मैं सिर्फ इतना लिखा, ये बोला है एंडो के बाद कैसे इसको, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा था, वापस स्क्वायर की दब गया मेरे पे। मैं क्या लिखा, 1:12, ये बन गया मेरा, ये क्या बना, एक मैट्रिक्स बन गया। तो आपने एक चीज नोटिस की, 1 to 12 की वैल्यू कैसे आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली चीज मैंने इसको सिर्फ दो डेटा पॉइंट या दो पैरामीटर पास किए, एक तो डेटा, दूसरा कितने रो बनेंगे। तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, ऑटोमेटिक इसको समझ में आ गया कि मेरे को 4 कॉलम बनाने, क्योंकि 12 डेटा पॉइंट है तो बाय डिफॉल्ट कितने बनाने हैं, राइट। तो एन रो का मतलब नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 रो 2 रो एंड 3 रो, राइट।
Sir, one question, please. By row, yes, Russell. सर मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है. आपने ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन करा ए फिर एरो मैट्रिक्स 1:12 एन रो करके, फिर उसके बाद रन करने के लिए आपको ये आपने ये दोबारा ए क्यों करा है टाइप, ये थोड़ा okay, ये प्रिंट कराने के लिए. इसका मतलब क्या हो, ये इसके अंदर असाइन कर दो, तो यहाँ पे आ गया असाइनमेंट में यहाँ पे. हाँ जी. इसका मतलब प्रिंट नहीं होता है, इसका मतलब कहता है असाइन कर दो. अब असाइन वैल्यू को देखना भी तो है. ठीक है ना सर ये नंबर ऑफ रोज तो एन रो से डिफाइन हो गया, बट ये जो प्रिंट हुआ है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे डिटरमिन होता है? ये एन रो को हाईएस्ट एलिमेंट से डिवाइड करके? नहीं, इनको जितने एलिमेंट मिले, राइट, वो चीज सर करंट जो हमने एग्जांपल जो करंट हमने भी लिखा है कि मैट्रिक्स 1 to 13 एन रो, बेसिकली इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम 1 to 13 ले रहे हैं और उसको पर रो ओनली 3 से हम कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही चलता जाएगा आगे, चाहे वो 13 हो 14 हो, लास्ट नंबर जब तक उसका कोई लिमिट डिफाइन नहीं है तब तक वो चलता जाएगा. करेक्ट? हाँ, मेरे को इस डेटा की 3 रो में डिवाइड 3 रो में बांटना है. कितनी रो को अलाउ कर रहा हूँ मैं? सिर्फ 3 रो तक, रो 1 to 3, राइट. तो इसमें वैल्यू असाइन करना चालू किया, जब 13th वैल्यू आई तो उसको एक और कॉलम बनाना पड़ गया, इनपुट हो गया, और फिर वापस से रिपीट कर दी. ठीक है ना. एक मिनट सर, एक क्वेश्चन है आपसे. हाँ जी. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसे क्यों करता है? Why does it do it for 1 2 3 4? मैं एक आप अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूं, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, राइट. अभी मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है पूरी तरह से आप लोगों को. तो पहले तो एन रो वाला मैटर क्लियर हो गया अब सबको कि रो वाइज 3 रो क्यों नहीं, क्योंकि मैंने 3 रो बनाने को ही बोला है. अगर इसको मैं 4 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, 4 रो में डिवाइड कर देगा डेटा को, तो कॉलम कम हो जाएंगे, डेटा तो 12 ही है, राइट. अब करते हैं इसको बाय रो इज इक्वल टू फॉल्स, राइट. फॉल्स कैप्स में लिखाना चाहिए था, कैप्स में लिख दिया. और बाय रो इज इक्वल ट्रू करूंगा तो आपका आउटपुट अलग हो गया. लेट मी इंक्रीज द साइज, राइट. सो बाय रो इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो वो आपको रो वाइज अलाइनमेंट करता है 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट 1 5 6 7 8 9 10 11 12. नाउ द मोमेंट आई चेंज इस बाय रो टू ट्रू, तो क्या केस है, रो वाइज असाइन करना चालू कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now you can ask questions. By default, by row is equal to true. By default, by row is equal to true. अगर मैं नहीं भी लिखता तो भी वही आउटपुट था आपका जो मैंने आपको पहले दिखाया था, पहले विदाउट बाय रो के था. तो बाय डिफॉल्ट, सॉरी, इससे बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स. अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट ये है फॉल्स. ओके, फॉल्स. फॉल्स होता है अपने आप, अपने आप ही होता है. अगर ये नहीं भी लिखूंगा तो भी इसका आउटपुट देखो, ये ना नहीं लिखा था मैंने तो आउटपुट सेम आया था ना, राइट. फॉर एग्जांपल कुछ फंक्शंस ना बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं हर एक उसके अंदर, फंक्शंस के अंदर. क्या आप उनकी वैल्यू नहीं लिखोगे
Alright, so now there are a lot of questions is coming. आपको मैं बहुत सिंपल तरीका बता दूं कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का. अब आपके हाथ में एक हथियार दिया हुआ है, राइट? प्लीज ट्राई एट योर एंड फर्स्ट. फिर कुछ समझ में आया, देन यू रेज अ क्वेश्चन. अब मीनाक्षी को कुछ एरर आ रहा था. मीनाक्षी, आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया, तो आपका एरर मैं आंसर करता हूँ. तो अब अगर आपका मन कर रहा है सर 1 to 25 लिखूंगा तो क्या होगा, एंड ये करूँगा तो प्लीज यूज आर स्टूडियो. अब आपको पता है ना कौन सी चीज कहाँ दिखती है. Sir, but Is it necessary one to quick write true question. false in caps? Yes. True false caps में लिखा जाता है. Yes, Ankit. Yeah, sir, just one quick question. Like before this, before the matrix, whatever we are initializing and whatever the outputs, whatever the values we are assigning in the global environment tab, everything was under value section. But now when we define a matrix, it is another column header as came like data. Under Data. that, the matrix, yes. So like, are these two different? Like, how it is Yes, different? they are two different things. Vector, this is एक series है, right? So vector is just kind of series. अगर किसी और लैंग्वेज में बात करूँ मैं, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सीरीज है. तो वैल्यूज ही हैं, और वो आप वैल्यूज को 1 2 3 करके ढूंढ भी रहे थे. Yes. Now this is coming into a structure. मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर बन गया, which is a square form. और वो डेटा के फॉर्म में आ गया, उसको डेटा स्ट्रक्चर बोल दिया. Okay. So like, if we talk about list, also comes under data only. Yes. मीनाक्षी, आपका जो ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा है एनरो के बाद, उसको हटा दीजिए. आपका कोई प्रोग्राम चाहिए. अच्छा, किसी ने आंसर भी कर दिया. थैंक यू मधुर. ये हो गया मैट्रिक्स की बात, राइट? नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस, आगे बताता हूँ. अनुज आगे है, आगे एग्जांपल दिया हुआ है इसका. टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स would require two index value now, one for the row and one for the columns, right? So for example, if you want to access any element of your matrix, for example 6 को आपको एक्सेस करना है, तो आपको मैट्रिक्स को बोलना पड़ेगा 2 by 2. अगर 10 को एक्सेस करना है तो 2,3. कैसे करोगे आप? नाउ सर इंडेक्स नंबर देंगे रो और कॉलम का ऐसे. यस. 2,3 में क्या आएगा? 6. अच्छा, वो पुरानी थी, सॉरी. हाँ, नई नेक्स्ट नई मैट्रिक्स तो ये ना हमारी रो टू थर्ड कॉलम. डन आगे. नाउ अगर मल्टीपल वैल्यूज देखनी है तो उसका तरीका समझाता हूँ. किसान म्यूट कर लोगे प्लीज. हाँ, माई मैट्रिक्स, ठीक है. ये आपके ऑब्जेक्ट का नाम आ गया. मान लो आपको रो नंबर 1 और 3 चाहिए और कॉलम सारे चाहिए, तो आप किस तरह से लिखोगे? कॉमा से इस तरफ की सारी वैल्यू किसकी हो गई? रो के लिए. इस तरफ की वैल्यू हो गई कॉलम के लिए. तो कॉलम क्या, अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं उसका मतलब सब कुछ. ऑलराइट. तो रो और 1,3 लिखा है, उसका मतलब है रो नंबर 1 एंड रो नंबर 3. तो एक को समझ नहीं आया कि मैट्रिक्स में अगर हम सिर्फ एक आइटम चाहिए मुझे, रो थर्ड कॉलम, तो कौन सा ब्रैकेट रहेंगे? ब्रैकेट कौन सा रहेंगे? चलो मैं आप ब्रैकेट तो स्क्वायर ही लगेगा हर जगह, ठीक है ना. पहली चीज, उसके अंदर जो वैल्यू लिखनी है वो अलग अलग तरीके से लिखी जाएंगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. आप अभी आपकी करंट मैट्रिक्स ये है, राइट? 1 2 3 ये है ना करंट वाली. हाँ, ये है.
इसके से एक एलिमेंट निकालना है तो आपके पास ये तरीका है। अब मल्टीपल एलिमेंट निकालने हैं, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर ब्रैकेट, मान लो मेरे को चाहिए रो नंबर 1 जो कि 1 2 3 वाली है, और रो नंबर 3 चाहिए जो 7 8 9 वाली है सिर्फ। अच्छा, ये मैंने एक किसके लिए वैल्यू असाइन की है? एक ये एलिमेंट मैंने हुआ सिर्फ ना? रो, नहीं सर एक हाँ। एलिमेंट ना, ये हो गया रो वाला हिस्सा, जो जो रो के लिए मैंने वैल्यू लिखी है ना, ये अच्छा उसके अच्छा लिए। अच्छा। अब कॉलम भी बताने पड़ेंगे, कॉलम कितने चाहिए आपको? क्या तीनों कॉलम चाहिए? तीनों चाहिए तो ऐसे मैं छोड़ दूंगा इसको। ये आपका आंसर 6 है कि आंसर 3 है सर? ये आपने बना लिखा है C13 जो है आपने लिखा है, इट मींस नहीं नहीं, फर्स्ट रो ये थर्ड मैंने, कॉलम ना? नहीं सर, पहले तो जो 6 आंसर है वो इसका आया है। ठीक है, समझ आ गया। सेकंड वाला बताइए, 27 वाला बताइए। सेकंड वाले में मेरे को क्या चाहिए पहले वो डिसाइड करता हूँ, तब मैं कोड लिखूंगा, राइट? हाँ जी। हमेशा आपको क्या चाहिए आप उसका प्रोग्राम लिखोगे, प्रोग्राम का आउटपुट आ गया उसको नहीं समझना। मुझे चाहिए हाँ, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 3 चाहिए। दोनों? अच्छा, दोनों चाहिए ना, दोनों ले सकता हूँ कॉमा, क्योंकि ओके, कॉलम भी ठीक चाहिए होंगे, खाली खाली रो में से क्या निकालूंगा? ठीक है, समझ गया। तो ब्लैंक छोड़ दूंगा तो इसका मतलब सारे कॉलम। तो ये आ गया 1 2 3 वाला और 7 8 9 वाला कॉलम आ गया। अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर मेरे को कॉलम भी कुछ लिमिटेड चाहिए, कॉलम में लिख देता हूँ कॉलम नंबर 1 एंड 2। कितने 3 कॉलम है ना, हाँ तो 1 एंड 2 लिख देता हूँ, 1 कॉमा 2। 1 2 तो 7 8 ये आ आ जाएगा। गया 1 2 7 8 आ गया। जी, समझ अगर गया। मेरे को सारा कॉलम चाहिए तो, सारे कॉलम चाहिए तो ब्लैंक छोड़ दें। सॉरी सारी रो चाहिए, कॉलम नंबर सिर्फ 2 और 3 चाहिए। तो ये आ गए आपके चारों रो आ गई, 2 कॉलम का डेटा आया सिर्फ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर आपने इसमें जो फर्स्ट वाला करा था ए ब्रैकेट 2 और 3, तो उसमें रो हाँ जी, नंबर 2 करी थी हमने और कॉलम नंबर 3 चूज करा था, तो हमारा आउटपुट 6 आया था। राइट। तो फिर उसके बाद जो आपने कमांड दी है जिसमें हमें मल्टीपल वो सिलेक्ट करनी है, तो इसमें जो आपने करा ए ब्रैकेट सी फिर दोबारा सर्कुलर ब्रैकेट्स 1:3, तो इसमें रो 1 और कॉलम 3 नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये नहीं होगा? हाँ, रो नंबर 1 रो नंबर 3 एंड कॉमा के बाद ब्लैंक छोड़ा है ना, ये ब्लैंक, ये देख रहे हो आप, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो ये तो फ्री छोड़ा अच्छा हुआ है ठीक तो है, इसमें फर्स्ट सारे वाला कॉलम हो आ गए। गया तो ब्लैंक में सारे कॉलम्स आ गए फिर हमारे। हाँ ठीक है cool। एक बार क्वेश्चन कॉपी आया कर वो, लेते हाँ, हैं। बिल्कुल 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 प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, वन क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रुप, जिन लोगों की आवाज अभी तक मैंने को सुनने में नहीं आई, क्या उनको सब कुछ समझ में आ रहा है या ऑल क्लियर हो रहा है? अगर नहीं आ रहा है प्लीज डू नॉट हेसिटेट, आप अपने चैट बॉक्स का प्राइवेट वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। तो आपके चैट बॉक्स में नीचे ना सेंड टू वाला एक ऑप्शन है, वहां पे ना अगर आपको लगता है कि आप पूरे ग्रुप में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वहां आप मेरे को पर्सनली जितेंद्र गौतम नाम पे जाकर के सिलेक्ट करके क्वेश्चन भेज सकते हो। And Jitendra sir, I have one question. एक और चीज, not question, एक request है, जो students नहीं response करे over the chat और over the mic, specifically उन students को अब से हम pick करेंगे and we will ask the questions in the batch because सबके
अटेंशन हमें तभी पता चलेगी कि सबको समझ आ रहा है, दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई, दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्स, और ये सारी चीजें। क्योंकि देखो अब देखो मेरे पे और कोई तरीका नहीं है, मैं सिर्फ अपने चैट बॉक्स पे डिपेंडेंट हूँ, राइट? राइट, टोटली। प्लीज रिस्पॉन्ड करो, यस नो जो भी बोलना है लिखो, तो मुझे मालूम चलता है कि हाँ कि आप लोगों के तक जा रहा है कुछ। हेमंत जी पेनल्टी लगाने की बोल रहे हैं। नहीं, आई वॉन्ट एवरीबडीज रिस्पॉन्स, एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको समझ आ रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्स करो, बिकॉज देर आर सिलेक्टेड पर्सन हु आर रिस्पॉन्डिंग ओवर द चैट और ओवर द माइक। नहीं देखो एक चीज समझो, आपके लिए भी ये मोड ऑफ लर्निंग नया है, मेरे लिए भी सिखाना नया है, राइट? तो जब तक दोनों से वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, मतलब समझ लो। या बिकॉज आई एम चैट तो उसमें भी अनुज, हेमंत, मीनाक्षी, अरुण, शशांक, प्रज्ञा, बस मुझे सिल्वी, निकिता, सूरज, बस यही नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं नजर आ रहा। वी हैव अ गुड नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, but I'm not able to see any revert or any response from the students. नहीं मैम, मैं पूछ लेता हूँ, कोई मुश्किल पड़ता है मैं पूछ लेता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। रोहित जी आपकी आवाज तो गूंज रही है, डोंट वरी। थैंक यू। ठीक है, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग अभी तक एक बार भी आवाज नहीं सुनी है, चैट पे भी मैसेज नहीं आया। सिल्वी कल तक रुक जाओ, ठीक है ना? मैंने इसलिए कल बोला था, कल आपको इंटरेस्टिंग होमवर्क मिलने वाला है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सब कुछ देखो, जो सिखाना है वो मैंने ही सिखाना है, जो सीखना है आपको इसी क्लास में सीखना है, ठीक है? अपना लोड किसी और को क्यों शिफ्ट करूं, मेरी ड्यूटी है ना सिखाने की, तो डोंट वरी। ओके जी, वेरी गुड, चलते आगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आज का। आई होप अभी तक सबको ऑल गुड चल रहा है। ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ठीक है। हम आते हैं मैट्रिक्स के डिम नेम पे ना, राइट? एक चीज समझना, सो वी कैन यूज dim function, sorry, we can use dim function to understand what is the dimension of my matrix, ठीक है? अभी तक तो आपने खुद से डिफाइन की थी 3x4 की मैट्रिक्स, बट अगर आपको कोई मैट्रिक्स मिलती है उसकी डायमेंशन पता करनी है तो आप एक फंक्शन यूज कर सकते हो जिसका नाम है dim, DIM, और उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो, माई मैट जो भी आपने बनाया था, देन इट विल शो यू 4/3। आपके केस में आएगा आंसर 4/3। जो आया तो 4 रो 3 कॉलम है मेरे, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे एक मैट्रिक्स के अंदर कोई रो ऐड करनी है या कोई कॉलम ऐड करना है, तो याद रखना अगर ऐड होगा तो सब में ऐड होगा, रो वाइज होगा तो सारी रोज के अंदर डेटा आना चाहिए, राइट? क्योंकि ये एक्सेल नहीं है, एक डेटा शेप, एक शेप है डेटा की, राइट? तो वो पूरा फुलफिल होना चाहिए। तो उसके लिए देयर आर 2 फंक्शन बाय नेम ऑफ सी बाइंड। सी बाइंड मतलब कॉलम बाइंड करना है, आर बाइंड मतलब रो बाइंड करनी है। तो मैं आपके स्क्रीन पे आता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है आपको ये ज्यादा समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टेबल अभी मैट्रिक्स क्या है देख लो, मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4/3 का मैट्रिक्स है। अगर मेरे को यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, क्या ऐड करना है? कॉलम। तो आई विल बी यूजिंग अ फंक्शन बाय नेम ऑफ सी बाइंड। किसके अंदर करना है जी? ऑब्जेक्ट ए के अंदर। वैल्यूज क्या क्या आनी है? तो वैल्यूज कितनी चाहिए मेरे को, कितनी वैल्यू चाहिए ऐड करने के लिए? थैंक यू राजकुमार जी।
सॉरी रोहित जी। मेरे को कितनी वैल्यूज चाहिए? 4 यस यू आर राइट, 4। हेमंत 4 वैल्यू चाहिए होंगी, 3 नहीं। राइट, क्लियर है सबको क्यों 4 चाहिए? तो 4 वैल्यू कोई भी लिख देता मैं। अब 4 वैल्यू एक साथ तो लिख नहीं सकता, तो कुछ कुछ ऐसे लिखनी पड़ेंगी, सी के साथ लिखनी पड़ेंगी। राइट, और ये मेरा वैल्यू ऐड होगी कॉलम के अंदर। नाउ सर सिमिलरली अगर कॉन्टिन्यूअस वैल्यू ऐड करनी है तो कोलन लगा के ऐड कर सकते हैं? हाँ, कॉलम लगा के कर सकते हो। और अगर आपको रो बाइंड करनी है तो रो बाइंड ऑब्जेक्ट नेम, फिर आपको कितनी वैल्यूज देनी है? अब तो रो भी आपकी 4 ही है। तो कॉन्टिन्यूस वैल्यू देते हैं। क्या हो गया इसको? अच्छा सॉरी, ये हमने असाइन नहीं किया ना, सिर्फ प्रिंट आउट किया था। तो ए में अभी भी ना 3 ही रोज 3 ही कॉलम है, तो 1:3 लेना होगा ये। अभी भी मैट्रिक्स मेरी वही है पुरानी, ये तो सिर्फ आउटपुट है जो आप देख रहे हो। अगर इसको कहीं असाइन करोगे तो चेंज होगी ये। मान लो इसको बी के अंदर आपने असाइन कर दिया, तब जाकर कुछ बी के अंदर एडिशन हुआ, बी को आप ऐड अब देखोगे तो अब ये परमानेंटली स्टोर होगी वैल्यूज। सर मेरे को ये समझ नहीं आया। जब मैंने सी वाइन यूज किया ना वत्सल, तो यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट में एडिशन नहीं करवा रहा हूँ, ये तो सिर्फ प्रिंट आउट में आएगा। जब तक आप वैल्यू को स्टोर नहीं कराओगे तब तक कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। राइट, अगर आपको ए के अंदर ही चेंज करना है, मान लो अभी जो ए है आपका, जो ए वाला मैट्रिक्स है ना, जिस अभी भी 4/3 की शेप में है। हाँ जी समझ गया। उसमें ये जो हमने नई वैल्यूज ऐड करी है वो हमने ऐड नहीं करी है, तो हमने सीधा रन कर दिया, इसलिए नहीं आ रहा। सिर्फ रन किया था, इसलिए नहीं आ रहा था, हमने सिर्फ रन किया यहाँ पर। हाँ जी। So I think that C bind means column bind and B R bind is row bind, right? Yes. So अगर 4/3 4 column 4 rows and 3 columns का मैट्रिक्स है तो उसमें सिंपल तरीका, अगर आप सी बाइंड यूज कर रहे हो तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम के अलावा वैल्यू ऐड करवानी है। अगर आप रो बाइंड यूज कर रहे हो तो नंबर ऑफ कॉलम के अलावा वैल्यूज ऐड करानी है। कैसे बोलिए? अगर आप सी बाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, हाँ जी, राइट, तो आप इसको देखोगे इतनी वैल्यूज ऐड करानी है जितने रो के अंदर है। जितने रो में है वो आप कॉलम बाइंड में ऐड करेंगे आप। ओके, एक कॉलम ऐड करो तो 4 वैल्यू चाहिए, 1 2 3 4। हाँ जी समझ गया। और रो बाइंड करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ ठीक है। I don't think what's that answer. और हटाना है तो आप वही माइनस सिंबल से इसको यूज कर सकते हो। राइट राइट सर। Okay, so dimension name. Now dimension name, you can assign dimension name. तो अभी आपने क्या किया, डायमेंशन नेम अपनी मैट्रिक्स को नाम दिया और उसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट की जिसका नाम दिया रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 और कॉलम की लिस्ट क्रिएट की कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4।
अगर आपकी रो में 4 रो है तो आप रो 1 2 3 4 लिख सकते हो, या कोई भी नाम जो भी आपको पसंद हो। कॉलम में 3 है तो फिर कॉलम में से 3 लिखना, एंड यू विल सी देयर नेम अटैच्ड टू योर मैट्रिक्स। कुछ क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, बोथ रोज एट द सेम टाइम। आंसर इज नो कर गया। हाँ, yes please, someone is asking some question. एग्जांपल Yeah, so just what हाँ बोले, एग्जांपल चाहिए so था। just what हाँ बोलो अंकित, बोलो। रोहित जी मैं आपके साथ आता हूँ अभी। sir, just one question, like I was trying, like now the R matrix is like 5 cross 5. So now if I'm using, just for example, like I am using R bind function, and I am in the vector, in the concatenation I am putting 6 values, like I am writing one more extra. So what it is showing, like it is taking the 4th column same as, and it is printing it in the 5th column, the values that are there. So what you mean to say, for example, let me solve your query. मैं इसको डिलीट कर दूँ, आई थिंक अपने एरिया ज़्यादा मिल जाएगा। आपने एक मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर वैल्यू थी MATRIX मैट्रिक्स 1:25, आपने n रो लिखा इज इक्वल टू 5, और ये आपकी मैट्रिक्स होती है 5/5 की, राइट? नाउ यू आर सेइंग इफ यू आर यूजिंग अ फंक्शन, लेट्स से C bind और R bind, इस केस में तो दोनों एक ही होगा, and you are writing A and you are not defining a value, let's say 1:6, yes, right? यही कहना चाह रहे हो ना? तो you see, आपकी पहले 5/5 की रो थी जिसके अंदर ये वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 यहाँ ऐड हुआ, वेक्टर लेंथ उसे नहीं मिली, उसने आपको वार्निंग भी दी थी, राइट? अगर यही वैल्यूज अगर आप 1:, लेट्स से आपको कहते हैं 10 चाहिए ना, 9 करते हैं या 8 करते हैं, राइट? तब भी आपको क्या मैसेज दे रहा है कि बाइंड करते समय मैं सिर्फ इतनी वैल्यू कर पाया, रियल इज नॉट ए मल्टीपल वेक्टर ऑफ लेंथ 2। अगर ये आप 1:10 कर दोगे, जाओ C1 10, होगा तो क्या होगा? So number of rows of arrays is not a multiple of vector length argument 2. बोला कि argument है तो multiple ही है। This is the exact number of. बताता हूँ आपको। This is the exact number of rows. Can't be more than that. अच्छा मैं कर रहा हूँ, मैं एक बार में एक ही लेगा, कोई वार्निंग के बाद वो एक ही ले रहा है, राइट? ओके, सो जामिनी का मैसेज आया सर दूसरी क्लास। ओके, क्विकली कमिंग टू द डायमेंशन नेम, राइट? एक बार डायमेंशन नेम समझ लेते हैं। जैसे डायमेंशन नेम में आपको क्या करना, यू नीड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम। तो आपने रो क्रिएट कर ली, आपने कॉलम क्रिएट कर लिया, राइट? एंड यू कैन असाइन देम बाय dim name function. हेलो यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट। सर ये लास्ट वाला पोर्शन समझ नहीं आया, जब आपने कॉलम में सी बाइंड वाले फंक्शन में
1:10 डिफाइन कर, वहां पे वो उसने वैल्यूज क्यों नहीं लिए, मतलब 5 के आगे? एक्चुअली एक बार में वो उससे एक ही ऑपरेशन कर पा रहा है, राइट? एक अच्छा बार में ठीक वो है सर। एक ही ऑपरेशन, हाँ, वो एक से ज्यादा ऑपरेशन कर नहीं पा रहा है। दिस वाई मैंने उसको इसलिए उसको 12 करके देखा, क्योंकि क्या सेकंड वाले में रिपीट कर पा रहा है, तो वो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, थैंक यू सर। देखो ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा मुझे। ये वाला पार्ट ये कि एक बार में आप एक ही रो या एक ही कॉलम उसको ऐड करवा पा रहे हो। Sir, in this case, I tried that it may be returning a warning message, but it is doing the operation, and then it is just taking the first number of rows, and then it is truncating the rest of the vector. It is If you assign it to B and then run it. So you mean to say if I assign this to B, Then it will take the first number of first 5 characters and will. yes, this is what it is doing. It is not taking any other value more than 5. Yeah. Even I have given it a more than, it can go beyond 5, so it can go 6, 7, 8, 9, 10 up to 10, but it is not doing. So at one go, it is only doing one operation. Right? Yeah. And what we learn from this, that okay, this is how this function is designed, that it cannot do the repetition. Right. So now next thing is dimension name. I think Damini is again. So okay, I need to wrap up this class because the other class is waiting. So we will start from here only, dimension names, right? Till then, practice the program which I have shared with you, and tomorrow I will give you the homework for practice more, because by tomorrow I will be able to cover all the data structures. Then we will move further, right? And please come up with the question which you have on the class I have covered, on the subject which I have covered. Okay, sir. All right. Okay. Thank you very much. Thank you much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye guys, take care. Bye. Bye, Zavadi. Thank you.